ہمارے ساتھ ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، ہمارے ساتھ وہ تعلقات کیوں نہیں بہتر کر رہے ایز کمپیئر ٹو اگر بات کی جائے انڈیا کی؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ نان مسلم کنٹری ہے، تو ان کے ساتھ تعلقات کیوں بہتر؟ سر دیکھیے، جب آپ کوئی بھی ملک ہوگا نا تو وہ اپنے لیے سنسیئر ہوگا. جب آپ کسی کے خلاف جا رہے ہیں، آپ ان کے خلاف اڈے دے رہے ہیں، آپ ان کو مروانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جا رہے ہیں، اگینسٹ جا رہے ہیں. یہ پہلے بھی چلتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ایئر اسپیس استعمال ہوتی رہی ہیں. امریکہ یہاں سے اڈے استعمال کر کے وہاں پہ حملہ کرتا رہا ہے. اور اب بھی اس کا پھر ہم امریکہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں کیوں مطلب لگتا ہے کہ امریکہ ہی ہمارا سب کچھ کر رہا ہے اگر آئی ایم ایف کا امریکہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ سپر پاور کی انفلوئنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ایڈ لے رہے ہیں تو ہم اپنی سوورینٹی جو ہے وہ ساتھ ان کو دے دیں. وی آر سوورین اسٹیٹ، ٹھیک ہے، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہے. نا جو آپ نے بات کی نا مسلم امہ، یہ صرف نام کی مسلم امہ ہے. اس ٹائم دنیا کے اندر دو نظام چل رہے ہیں. ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے. جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے جس کنٹری کے ساتھ آپ کے بزنس تعلقات ہوتے ہیں، آپ ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے. یہ مسلم امہ یہ سارا لالی پاپ ہے، آپ بیچ رہے ہیں، سعودی عرب بیچ رہے ہیں، پوری دنیا میں بک رہا ہے. اب دیکھیں پاکستان سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ تعلقات بنائیں گے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ہم انڈیا کے خلاف، ہم پاکستان کے خلاف بیان دیں گے ہمیں زیادہ ایڈ ملے گی. ٹھیک ہے. ہمیں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ افغانستان نے آفیشیلی وارن کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ آپ کا ایئر اسپیس جو ہے ہمارے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے، آپ اس پر غور کریں ادروائز معاملات خراب ہوں گے. اور سیکنڈلی افغانستان میں جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے ان کا جھکاؤ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. انڈیا کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بہتر رکھنے کے لیے بہت خواہش مند ہیں. اسی والے سے پاکستان کی عوام سے بات کروں گا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امہ یونائٹڈ ہے اور دوسری طرف افغانستان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر پیور شرعی نظام ہے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں رکھنا چاہ رہے یا نہیں رکھ پا رہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. آخر کیا وجہ ہے؟ اسی والے سے پاکستان کی عوام سے بات کریں گے اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں. سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ طیب رسول. کیا کرتے ہیں؟ میں میس کام کا اسٹوڈنٹ ہوں جامعہ پنجاب سے. ٹھیک ہے. میں آج جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے آفیشیلی وارن کیا ہے پاکستان کو کہ آپ کے جو ایئر سپیس ہے، پاکستان کی ایئر سپیس افغانستان کے خلاف یوز ہو رہی ہے، افغانستان کے اگینسٹ یوز ہو رہی ہے، آپ اس پر غور کریں ادروائز ہم ایکشن لیں گے. کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اچھا یار نا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب سے طالبان کی حکومت افغانستان کے اندر آئی ہے تب سے پاکستان کے ساتھ ریلیشن ان کے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسا کہ ریسنٹلی ہمیں ہمارے پاکستان کے اندر بجلی کا کرائسس آیا، بجلی کی کمی ہوئی تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس پہ بات کرنا چاہیے، افغانستان سے کوئلہ منگوانے کی کوشش کی کہ یار ادھر سے منگوا کے ہم یہاں بجلی بنائیں گے. جیسے ہی پاکستان نے یہ بات کی افغانستان نے مہنگا کر دیا، افغانستان نے کوئلہ مہنگا کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی عوام کے ساتھ افغانی عوام بالکل ان کے ساتھ ریلیشن ہے، لیکن جو علاقائی لیول، علاقائی رشتہ داریاں جو کہ خیبر پختونخوا اور ادھر ہمارے علاقے اور افغانستان کے جو علاقے ہیں وہ جو سارے آپس میں اچھے تعلقات ہیں، لیکن جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن اچھا نہیں ہے. وہ مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ جو بات کی ہے بڑی اتھینٹک بات کی ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ بولا کہ ہم افغانستان سے کوئلہ لیں گے ساتھ ہی انہوں نے اس پہ پراپر ایکسٹرا ٹیکس لگا دیا. اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امہ، ٹھیک ہے، مسلم امہ پوری دنیا میں ہم ایک پاور ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈلی جب بات آتی ہے افغانستان جو کہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے، پیور اسلامک نظام ہے، شرعی نظام ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اس ٹائم کہیں نہیں شاید جتنا افغانستان میں ہے. وہ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں رکھ رہا انڈیا کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں نان مسلم کنٹری، وہ ایک سیکولر کنٹری ہے لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ ہندوؤں کا کنٹری جو ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے، تو پھر وہ ہندوؤں کے ساتھ پیور شرعی نظام والا کنٹری اپنے تعلقات بہتر رکھ رہا ہے اور ہم جو اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے ہمارے ساتھ تعلقات نہیں بہتر رکھ. یار نا جو آپ نے بات کی نا مسلم امہ، یہ صرف نام کی مسلم امہ ہے. اس ٹائم دنیا کے اندر دو نظام چل رہے ہیں. ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے. جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے جس کنٹری کے ساتھ آپ کے بزنس تعلقات ہوتے ہیں، آپ ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے. یہ مسلم امہ یہ سارا لالی پاپ ہے، آپ بیچ رہے ہیں، سعودی عرب بیچ رہا ہے، پوری دنیا میں بک رہا ہے. اب دیکھیں 56 کے قریب مسلم ممالک ہیں، ان کے آپس میں ٹریڈ دیکھ لیں، ان کے ریلیشن دیکھ لیں. اگر آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے اندر تو زیادہ مسلمان ہیں. یہ چیزیں نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے یہ حکومت ہے، طالبان کی حکومت ہے، انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات صرف اسی لیے کہ وہ ان کو ایڈ دیتے ہیں، ان کے
स्टूडेंट्स को वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती हैं। उनकी आर्मी को प्रॉपर ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो टोटली अफगानिस्तान जो एक कठपुतली गवर्नमेंट है वो टोटली अमेरिका की बनाई गई है, उनके साथ ताल्लुकात हैं और उन्हीं की वजह से वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। आपने जितनी भी बातें की हैं मैं इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन लास्ट में आपने ये बोला कि वो इंडिया के कहने पर या अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। तो क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि वो स्टेटमेंट ऐसी दें और हम कहें कि ये गलत है? मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, देखिए हमारा भी डेफिनेटली है यहाँ पे। फिर हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो इंडिया के कहने पर कि हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है या नहीं? यार हम खुद कहाँ पे खड़े हैं, हम खुद तो देखें ना, अपनी तरफ भी देखें हमारे मसाइल कितने, हम अपने मसाइल पे फोकस करें या अफगानिस्तान के मसाइल पे फोकस करें। हम अपने आप को स्टेबल करेंगे, उसके बाद बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को देखेंगे। लेकिन वो जो अफगानिस्तान चाह रहा है हमसे, अफगानिस्तान ये तो मेरा लॉजिक है, यही तो मेरा क्वेश्चन है और यही वीडियो का मकसद है कि क्यों हम दूसरों के घरों में, दूसरे कंट्रीज़ में इंटरफेयर करते हैं, क्यों हम अपनी एयर स्पेस देते हैं और फिर ऐसे स्टेट्समैन हमें सुनने को मिलते हैं। अफगानिस्तान जैसा कंट्री जो कि अभी मैं समझता हूँ कि दोबारा से उसका एक कह लें कि वो सर्वाइवल हुआ है, रिवाइवल हुआ है, तो वो हमें ऐसे कह रहा है कि हम आपको देखेंगे या आपको हमें वो वार्न कर रहा है। हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। यार मेरी बात सुने, इसमें ये है कि अफगानिस्तान एक उसकी आइडेंटिटी है, अलहदा सालमियत है उसकी, वो उससे कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो उन्होंने अगर इनसे ये बात की है वो करना, अच्छा ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी तो होनी चाहिए। ये पाकिस्तान, ये जो आपने बात की है, हम एयर स्पेस दे रहे हैं इंडिया को, अमेरिका को दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं, जो कि हकीकत है दे भी रहे हैं, ठीक है। ये अपनी, अगर हमने अपनी सालमियत पे कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, वो नहीं करना चाहते, वो आपके साथ एग्री नहीं है, वो नहीं करना चाहते, वो आपको वार्न करते हैं क्योंकि वो एक अलग स्टेट है। अच्छा, अब लास्ट में मुझे ये बता दें, आपकी बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ और आप पढ़ी लिखी और अथेंटिक बात कर रहे हैं। लास्ट में मुझे ये बता दें, अक्सर ये कहा जाता है जी हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से हमें जो है ना बात माननी पड़ती है अमेरिका की, हमें एयर स्पेस देनी पड़ती है। ऐसे तो फिर अफगानिस्तान की इकॉनमी भी स्ट्रांग नहीं, ऐसे तो ईरान की इकॉनमी भी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो बात नहीं मानी। हम क्यों इस तरीके से हो चुके हैं कि हम हर बात पे लॉजिक ही ये रखते हैं कि यार हम दरअसल ना उधर से एड लेते हैं, हम वहाँ से डॉलर लेते हैं, इसलिए हमें माननी पड़ेगी। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ये कह देते हैं कि बैगर्स कांट बी चूज़र। मतलब हम क्यों नहीं अवेयरनेस की तरफ आ रहे, हम क्यों नहीं शऊर की तरफ आ रहे, हमें क्यों नहीं पता चल रहा कि हम अपने मसाइल को खुद हल करेंगे तो ही हल होंगे। यार हमारे जो मसाइल है ना, वो मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, हम अपने मसाइल हल करने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक जो अगर नई गवर्नमेंट आई इसमें कोशिश भी कर रही है, इमरान खान ने भी इसके अंदर कोशिश की है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, ये रिलेशन टू रिलेशन, कंट्रीज़ के रिलेशन, वो अब उनके ज़ाती मफादात होते हैं। वो एक सरमायादाराना निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम के अंदर उनके इंडिया के साथ तल्लुकात हैं, उनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ वो तल्लुकात बनाएंगे और उनको पता है कि अगर हम इंडिया के खिलाफ, हम पाकिस्तान के खिलाफ बयान देंगे, हमें ज़्यादा एड मिलेगी, ठीक है, हमें ज़्यादा हमें इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करेगा। वो इस लिहाज से सारे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान नाम। क्या करते हैं? मैं वैसे तो जॉब के लिए जो है वो कोई जदोजहद कर रहा हूँ, तो अभी देखें अब क्या बनता है। ज़बरदस्त, चलें आपको जॉब भी मिल जाएगी। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली वार्न किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान की एयर स्पेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, तो ऐसा ना किया जाए। सेकेंडली, एक जिस चीज़ पर मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या वजह समझते हैं? देखें, जो किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है इकानमी, ठीक है ना। एक कोट है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि इट्स ब्लडी इकानमी नॉट पॉलिटिक्स, ठीक है ना। ये सियासत नहीं है। हम देखते हैं कि लोग जो है वो कहते हैं कि ये सियासत ठीक करें, ये करें। जिस मुल्क की इकानमी स्ट्रांग है उसी मुल्क के पास जो है वो लिबर्टी भी है, उसी मुल्क के पास जो है हकीकी आज़ादी भी है, जिसकी आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। तो ये बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आती? ये देखें, एक तो सबसे जो बड़ी बात है वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो हमारे डेमोक्रेसी में फलाह है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। इसकी वजह से जो अब आप देख रहे हैं, अपना फॉरेन मिनिस्टर देख लें आप, उसको पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं, जिस बंदे की स्ट्रगल ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ के नहीं पता। आप मरीम नवाज को देख लें, उनके हत्या के बयानात आप देख लें कि किस किस्म की उनकी गिफ्ट। हम ओवरऑल किसी का नाम नहीं लेंगे, मतलब ये है कि किसी को टैग आउट नहीं करेंगे। अच्छा, आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ, अमेरिका से, अमेरिका की अगर एग्जांपल ली जाए तो क्या पाकिस्तान इस तरह स्टैंड करता है कि अमेरिका बोले कि हमें एयर स्पेस चाहिए और पाकिस्तान बोले एब्सोल्युटली नॉट? ऐसा हम इस पोजीशन में हैं कि IMF से कर्जा हम ले रहे हैं, इसके अलावा और हमारे बहुत से मसाइल हैं, एड्स हम ले रहे हैं।
आई थिंक अगर IMF से कर्जा लेना है, वो IMF इज़ नॉट बेसिकली अ पार्ट ऑफ अमेरिका, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जो कि कलेक्टिव कंट्रीज़ की तरफ से कलेक्शन हर चीज़ होती है। तो हम IMF फिर हम अमेरिका अमेरिका क्यों कहते हैं? हमें क्यों मतलब लगता है कि अमेरिका ही हमारा सब कुछ कर रहा है, अगर IMF का अमेरिका के साथ ताल्लुक नहीं है? सुपर पावर की इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, ये इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम एड ले रहे हैं तो हम अपनी सोवरेनिटी जो है वो साथ उनको दे दें। वी आर सोवरेन स्टेट, ठीक है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत है, सोवरेनिटी को दाव पे नहीं लगा सकते, ठीक है। हम हवाई अड्डे, अगर हमें लगेगा कि मिसाल के तौर पे हवाई अड्डे टेररिस्ट को अटैक करने के लिए हम दें, ठीक है, अगर अफगानिस्तान में टेररिस्ट मौजूद हों तो अगर बेसिक सिटीजन्स को और उनकी स्टेट को हिट करना है तो आई थिंक वी शुड कंडेम दैट टाइप ऑफ टैक्स जो है। ठीक है, आपकी तरफ भी आता हूँ, हल पूछूंगा आपसे। आप मुझे बताएं, ये सारे मामला जो चल रहे हैं, पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन में स्टैंड करता है? पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात अफगानिस्तान क्यों नहीं बेहतर करना चाह रहा, जबकि हम ये कहते हैं कि हमने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ दिया, ऐसा हम कहते हैं। आज हमारे पे मुश्किल वक्त है, नो डाउट वो भी कुछ अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपस में क्यों नहीं अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे एज कम्पेयर टू, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की तरफ झुकाव ज़्यादा रखे हुए हैं? आप देखें जो इस वक्त आपकी एक मुल्क के अंदर जो एक सियासी तौर पे एक फलाह आया हुआ है, एक डेडलॉक आया हुआ है। अब देखें दो जो अहम जो प्रोविंस हैं, ख़ास करके पंजाब, उनमें गवर्नमेंट एक पार्टी की है और उसके अलावा जो है वफाक है, उसमें एक पार्टी है। जब तक ये डेडलॉक ख़त्म नहीं होगा तब तक, अब जब तक मुल्क के अपने हालात नहीं सीधे होते तब तक ये डेडलॉक जो है ख़त्म भी नहीं होगा। और कोई और जो मुल्क के साथ हमारे रिलेशन है वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? ऊपर से एक जो फ्लड है, फिर हमारा जो इकानमी है एक बड़ी डिविंडलिंग सिचुएशन में खड़ी है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और उसके अलावा जो हमारी यूथ है वो अब थोड़ा सा समझ रही है कि हमें जो है इस साइड पे जाना, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये बात से मुझे बहुत खुशी भी होती है और मैं एग्री करता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूथ में ये चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि हमें इन इश्यूज़ पर बात करनी है, हम इस इश्यूज़ पर बात करेंगे तो ही। जी जी, देखें जो है ना यूथ, उसमें भी हमें एज अ कौम एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसको सिर्फ हमने यूथ बल्ज नहीं बनाना, हमने अपनी यूथ की ग्रोमिंग करनी है। हमने जो छोटे हैं, जो अभी बिल्कुल मतलब ग्रो कर रहे हैं, तालीम जो है वो सबसे बेसिक जो है ना, वो तालीम का और जो जब तालीम structure आएगी है तो उसको- अवेयरनेस। जी, तालीम का जो हमें स्ट्रक्चर है ना उसको हमें रिन्यू करना चाहिए। और हमें और भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल हमें जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक आया, हमें चाहिए कि हम आवाम को इसमें जो है आवाम की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा फोकियत दें, ताकि हाँ जी। आप मुझे बताएं इस हवाले से जो बात कर रहे हैं। इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना वो इम्प्रूव करने चाहिए। जैसे हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, एप्टा के नाम से, ठीक है। उसमें यह है कि पाकिस्तान रूट प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड में, और पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। अगर इस तरह की ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर मजीद हम इम्प्रूव करें तो जिस तरह प्रोडक्शन ऑफ टोबैको है, ठीक है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ टोबैको होता है, आप उसकी जो है सेल वगैरह परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको भी पता है इलीगल स्मगलिंग ऑफ पेट्रोल, इलीगल स्मगलिंग ऑफ टायर्स, ये चीज़ें होती हैं, सब चीज़ होती हैं। तो उसको थोड़ा सा लीगलाइज करके पाकिस्तान अपनी सब्सिडी भी रखे, ठीक है, उनको भी प्रॉफिट हो, पाकिस्तान को भी। इकॉनमी को बिल्ड करने के लिए आपको अपने रिलेशंस जो हैं इस तरीके से इकोनॉमिक टाइप पे जो है ना बिल्ड करने चाहिए। देखें जी जी, सबसे जो अहम बात है इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा वो यही है, आप देखें ना इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, वहाँ पे रोड बना रहा है, और इवन आर्मी को ट्रेन कर रहा है। उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बना रहा है। उनके लिए फ़ायदेमंद इंडिया, क्योंकि इंडिया की इकानमी स्ट्रांग है। लेकिन पाकिस्तान वहाँ पे चंद एक स्टेप लिए हैं, लेकिन वो महज जो है स्टेप्स ही हैं, ठीक है ना। मतलब उनका इतना अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से फ़ायदा नहीं जितना इंडिया की तरफ से पहुँच रहा है, क्योंकि वो उनकी अभी बिल्कुल जो इकानमी है वो ज़ीरो है। अभी से वो स्टार्ट ले रहे हैं, कोई भी उनको जो है वो कंट्री रिकगनाइज नहीं कर रही। और उनको तो चाहिए कि जो वहाँ पे इन्वेस्ट करें। हम अक्सर इस्लाम का जो है वो लिबादा ओढ़ के ये बात सोचते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमें उनकी तरफ भी आना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। इस्लाम को आप फॉलो करें, बहुत ज़्यादा फॉलो करें, हमारा मज़हब है और हमें फ़ख्र है। लेकिन जब आती है इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आती है तो हमें इंटरनेशनल अफेयर्स में दूसरे ममालिक को भी साथ देखना पड़ता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर मैं तो इसको एक बिल्कुल छोटी सी मिसाल पे जो है वो वाइंड अप करूँगा, जिस चीज़ को हम अभी वो फ्लड हैं, नो डाउट कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब भी होता है, लेकिन जिस चीज़ को हम अजाब बना के पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर आप कुछ हद तक देखें तो ये मिसमैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट है। मैं कहता हूँ ये नेमत भी हो सकती थी, जिसे हम अजाब कह रहे हैं, ये नेमत भी हो सकती थी अगर हम डैम्स बनाते।
आप मिस मैनेजमेंट को अगर इस्लाम की तरफ झुकाव डाल रहे हैं सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए सियासी तौर पे, तो ये इंतहाई पैथेटिक अप्रोच है। ये ज़्यादा देर वैसे नहीं चलेगी इंशाल्लाह। नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान की आवाम में शऊर आ रहा है, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं, वो इस चीज़ को जान चुके हैं कि हमें मज़हब के नाम पर तो कभी किसी चीज़ पर लड़ाया जाता और हमें कभी किसी के अगेंस्ट कर दिया गया सिर्फ मज़हब के नाम पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़्यादा मेरी। क्या करते हैं? मैथ्स कॉम स्टूडेंट। मैथ्स कॉम के स्टूडेंट है। ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली वार्न किया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एयर स्पेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, तो आप ऐसा ना करें। सेकेंडली, मुस्लिम उम्मा की हम बात करते हैं हमेशा से, अफगानिस्तान में इस टाइम प्योरली इस्लामिक गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके तल्लुकात पाकिस्तान से इतने बेहतर नहीं जितने उसके इंडिया के साथ बेहतर हैं। क्या वजह समझते हैं? हमें मुस्लिम उम्मा होकर हमें वो वार्न कर रहे हैं और इंडिया के साथ तल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, उन्होंने ये वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनके तल्लुकात और ट्रेड बढ़े। नहीं, अच्छी बात है। देखें, ताल्लुकात बढ़ने की बात और ट्रेड का जहाँ पे जिक्र आ जाता है, तिजारत कहीं भी किसी से भी हो सकती है। इसमें मज़हब को या आप मुस्लिम उम्मा को या इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब भारत जो है वो दुनिया के कई ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है, उनमें इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, उनमें गैर इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान भी कर रहा है। तो ये बात नहीं है। मैं इस बात से, हम क्यों कहते हैं, आप देखें मेरी बात को समझे नहीं, फिर हम क्यों कहते हैं कि हम जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? अगर अफगानिस्तान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे। हमने ये कहा है कि इंडिया से ट्रेड अतुल वसा हो सकती है, लेकिन जो मामलात हल तलब हैं उन पर बैठना ज़रूर होगा, उन पर मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। हमारे हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है। हमारे लिए तो बल्कि बड़ी सूटेबल है इंडिया की ट्रेडिंग जो सोसाइटी है, वहाँ पे जो माहौल है, हमें तो बड़ा फ़ायदा मंद है। उनके साथ तिजारत करते हैं तो हमें बड़ा इससे मुनाफा मिलता है। तो हमारी ये ख्वाहिश रही है पाकिस्तान की हमेशा से। बहुत बड़ी मंडी है इंडिया, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वहाँ पर हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, वो चाहे पाकिस्तान है चाहे अफगानिस्तान है। लेकिन मुद्दा ये है कि भारत को भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि कम अज़ कम जो हल तलब मामलात में बातचीत तो मुज़ाकरात तो शुरू होना, वो अगर मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे, कश्मीर का बहुत बड़ा मसला है, पानी का बहुत बड़ा मसला है, इन मसाइल के ऊपर बातचीत हो ताकि हमारे ट्रेड के मसाइल आसान हो जाएं। अगर इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ती है तो इससे फ़ायदा होगा। जहाँ तक बात है आपकी अफगानिस्तान की, आप समझते हैं अफगानिस्तान ने ट्रेड की है तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। वो दुनिया में किसी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, वो जहाँ उनको बेनिफिट लगता है वो कर दें। ठीक है, आपने ये जो बातें की हैं इन सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि देखें, हमारा भी वो हमसाया है, इंडिया का भी हमसाया है। एक तरफ हम नारा लगाते हैं मुस्लिम उम्मा का, मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है, हम सब एक हैं। दूसरी तरफ पॉइंट मेरा ये है कि अफगानिस्तान में प्योरली इस्लामिक गवर्नमेंट आई है और उन्होंने अपने तल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं रखना चाहे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के साथ वो तल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। मैं ये सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ट्रेड वो जिनके साथ मर्जी करें। देखें जी, जियो पोलिटिकल सिचुएशंस है, जोग्राफियाई हालात हैं। अगर उन्होंने अपनी जोग्राफियाई कैफियत को देखते हुए ये बेहतर समझा है कि उन्हें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना है, हो सकता है जो मफादात उनके इंडिया से वाबस्ता हो पाकिस्तान के साथ ना वाबस्ता हो। हमने कौन सा वहाँ पे जाके इमामत करवानी है या वहाँ पे जाके उनके जनाजे पढ़ाने, वो मामलात दीन के अलग हैं। यहाँ तिजारत के हवाले से अगर उन्होंने कोई फ़ैसला किया है तो ये उनकी अपनी कौमी मफाद की पॉलिसी के तहत फ़ायदा होगा कि उन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने। जो उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है उसका क्या? यकीनन अगर उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है तो कुछ मामलात चल रहे होंगे, हुकूमत उनसे इस चीज़ पर बात कर रही होगी। ये पहले भी चलता रहा है कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस इस्तेमाल होती रही हैं, अमेरिका यहाँ से अड्डे इस्तेमाल करके वहाँ पे हमले करता रहा है। और अब भी इसका जो है प्रॉपर तौर पर इसको जो तस्लीम किया है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तस्लीम कर चुके हैं। इससे इस बात से एग्री हैं कि भाई यहाँ से एयर स्पेस यूज़ होती रही है। हम सिर्फ इमरान खान साहब कर सकें बल्कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान से ये असल में वो जंग की कैफियत ऐसी थी। अब हमने कौमी सतह पर यह फैसला कर लिया कि आइंदा हमने किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना है। हमने बहुत नुकसान, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान पर बड़ा दबाव होता है, पाकिस्तान की माशी कैफियत और माशी हालत इतनी बेहतर नहीं है कि हम कोई अपना खुद कफील होकर फैसला ले सकें, हम कोई आगे बढ़ सकें। यकीनन दबाव में आते हैं हमारे हुक्मरान, और उन दबाव में आते हुए कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिससे तनाव बढ़ता है मुल्कों में। मुझे ये बताएं, बेहतरी कैसे आ सकती है? आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर करना है। जो एक इमेज बना है कि हम शायद, मतलब ऐसा है या नहीं एक अलग मैटर है, लेकिन पूरी दुनिया में इमेज बना है। इंटरनेशनल न्यूज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री, ये वो। इस इमेज को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? देखें जी, ये इमेज बनने में बड़ा वक्त लगा है और इसको ख़त्म करने में भी बड़ा वक्त लगेगा। हम एक
तसलसल के साथ एक पॉलिसी बनानी होगी। सबसे पहली चीज़ तो हमारी मईशत है। जब हमारी मईशत ठीक होगी, हमें कई फ़ैसले सिर्फ अपने पैसा लेने के लिए ही करने पड़ते हैं कि बाहर ममालिक से पैसा मिलेगा तो हम उसके सिलसिले तनाजुर में जो है ना कोई फ़ैसले करते हैं। तो हमें अपनी मईशत पर सबसे पहले तवज्जो देनी है। दूसरा, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है पाकिस्तान में, इस हवाले से गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, सोसाइटी के तमाम जो आला ओहदेदारान हैं, उनको सोचना चाहिए कि मुआशरे के अंदर लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन कैसे बेहतर हो सकती है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसे बेहतर हो सकती है। जब ये 2-3 चीज़ें बेहतर होगी तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर, तालीम पर यकीनन फोकस होना चाहिए। ये प्लस है, आई थिंक जब पहले लॉ एंड आर्डर सिचुएशन बेहतर होगी, खाने पीने को मिलेगा, मईशत बेहतर होगी, तो फिर ही कोई तालीम के बारे में, कोई तरक्की के बारे में सोचेगा ना। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हुरैरा। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, IBIT से। IIT से आप स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने प्रॉपरली वार्न किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को हमारे अगेंस्ट यूज़ ना करे वरना हम एक्शन लेंगे। एक ये चीज़। सेकेंडली, जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, उनका झुकाव, उनके जो एक रिलेशन है वो इंडिया के साथ ज़्यादा बेहतर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये क्या वजह समझते हैं आप? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि पहले अमेरिका ने इतनी देर उधर जद्दोजहद की अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद जब अब तालिबान की हुकूमत इधर आ गई है, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि उनके ख़िलाफ़ जो एयर दे रहे हैं वो उनको नहीं देनी चाहिए थे। एक तो वो मुसलमान है, जद्दोजहद करके वो अपनी, मुसलमान छोड़े, इंसान है, इंसान है, इंसानियत के नाते हमें बिल्कुल भी उनके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक है, इसके अलावा और उनका झुकाव ज़ाहिर सी बात है इंडिया की तरफ, इसलिए जो उनको अच्छा देगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की मुसलमान भाई हैं, ठीक है, आपकी बात से चलें अगर मैं एग्री कर लेता हूं तो मुसलमान भाई हैं, वो हमारे साथ, हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, हमारे साथ वो तल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर रहे एज़ कम्पेयर टू, अगर बात की जाए इंडिया की, हम उन्हें कहते हैं कि वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो उनके साथ तल्लुकात क्यों बेहतर? सर देखिए, जब आप कोई भी मुल्क होगा ना तो वो अपने लिए सिंसेयर होगा। जब आप किसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ अड्डे दे रहे हैं, आप उनको मरवाना चाह रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं। यही मैं समझता हूँ मेन लॉजिक ही ये है, वरना अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए, वो भी इस टाइम जिन हालात में है, जिन मुश्किल हालात में है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब हों, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ ऐसा होगा उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा और अफ़गानिस्तान को भी होगा। क्या समझ? ज़ाहिर सी बात है, जब ज़ाहिर सी बात है तालिबान जैसे हमारी पहले भी इतना वो बमबारी ये निज़ाम था, अभी देख लें स्वात में किस तरह का निज़ाम हुआ, उन्होंने तालिबान ने दोबारा से रुझान शुरू कर दिया। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, ये सारा इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे रहे, पिछले थोड़ी देर अच्छे रहे, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं जाते रहे, हमारा निज़ाम ठीक रहा। अब जैसे ही पाकिस्तान ने ये गलत, मतलब ज़ाहिर सी बात है गलत कदम है उनके लिए, जो हाँ ज़ाहिर सी बात है उनके लिए गलत है, तो वो अगेंस्ट इसके जलेंगे। और बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये जो बातें इन्होंने की हैं मैं एग्री इसलिए करता हूँ कि कोई भी कंट्री है वो अपने पर्सनल जो उनका मामलात हैं उनको तरजीह देगा, जो उनके पर्सनल फ़ायदे हैं उनको ज़्यादा तरजीह देगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर अफ़गानिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ यही रीज़न है कि अफ़गानिस्तान को वहाँ से अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने रिलेशन को बेहतर करे दूसरे तमाम कंट्री के साथ, ख़ास तौर पर अपने नेबर कंट्री के साथ। आज भी अगर हम अपने मसाइल पर पर्दा डालेंगे, आज भी अगर हम सिर्फ इस्लाम का नाम यूज़ करके अपने मसाइल को साइड पे कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मसाइल हल होने की बजाय मज़ीद बढ़ेंगे। हमें चाहिए, हमारी यूथ को चाहिए कि वो अवेयर हो और इन मामलात पर गौर करे, ना सिर्फ गौर करे बल्कि इनको बेहतर करने के लिए अपनी एफ़र्ट्स को पुट करे। आज की ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन थी आप उसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।